Good morning, all students, and welcome to all of you in online class. Students, as you know that in the last session I have studied about sentence, kinds of sentence, but today I will discuss about phrase and parts of sentences. So, students, be ready, pay attention on board. First of all, we will discuss about phrase and definition of sentence. The topic is phrase. Phrase. Do you know what is phrase? Phrase is a group of words that give sense but not complete. That is called phrase. A group of words give complete sense. That is called sentence. There is a minor difference between phrase and sentence. Listen carefully again the definition of phrase and sentence. A group of words that give a sense but not complete, that is phrase. A group of words that give us complete sense, that is sentence. This is minor difference. That gives sense but not complete, but in sentence gives complete sense. Complete but not complete. This is the main difference in phrase and sentence. So students, definition: a group of words that give sense but not complete. That is phrase. Example: a bed of roses. A bed of roses is a phrase. It is not a complete sense. The complete sense have subject and their own finite verb. But this sentence has no any verb. It is only phrase. It is a part of sentence. That not a sentence. So it is a phrase. Phrase is a part of sentence. That is phrase. phrase क्या है? पार्ट है सेंटेंस का. ये कोई कंप्लीट सेंस आपको नहीं दे रहा है, इसलिए ये बेड ऑफ रोज क्या है? आपका फ्रेज. अगर हम बात करते हैं सेंटेंस की तो इस तरह से कह सकते हैं: टूडेज द लाइफ फील्स अ बेड ऑफ रोजेस. यानी आजकल का जो जीवन है वो बेड ऑफ रोजेस. बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है कंफर्टेबल. कंफर्टेबल लगता है, यानी आजकल का जो जीवन है बड़ा ही कंफर्टेबल है. तो इस तरह से अगर बात करें तो कंप्लीट सेंस दे रहा है तो सेंटेंस, और कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा तो फ्रेज. अब फ्रेज में बात करते हैं. फ्रेज पार्ट, सेंटेंस का एक पार्ट होता है. ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट पार्ट होता है. इसमें भी कई सारी चीज़ें आती हैं. अब हम लोग बात करते हैं फ्रेज के साथ साथ सेंटेंस की. यानी फ्रेज आपको मालूम हो गया कि ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है, सेंस जरूर देता है. अब बात करते हैं सेंटेंस की. सेंटेंस क्या है? डेफिनेशन लिखते हैं: अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव कंप्लीट सेंस that is called sentence. सेंटेंस और फ्रेज में सिर्फ इतना अंतर है कि ये सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट नहीं देता, ये कंप्लीट सेंस देता है. इतना अंतर. एग्जाम्पल इसमें भी ले लेते हैं. मिस्टर मोदी जी will meet you
on the meeting of in the meeting of मन की बात, यानी जो हमें अगर मुलाकात करनी है, विजिट करनी है या हमें मोदी जी से संपर्क करना है तो मन की बात में हम जाएँ, मन की बात में उनसे हम लोग संपर्क कर सकते हैं। तो वही क्या, मोदी जी विल मीट यू, आपको मोदी जी मिल जाएंगे कहाँ पर, इन द मीटिंग ऑफ मन की बात, मन की बात की मीटिंग में आपकी बात हो सकती है। इस तरह से ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये सेंटेंस है, और कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा लेकिन सेंस दे रहा है वो फ्रेज है। स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। सो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, there are two parts of sentence. The first part is subject and second part is predicate. Do you know what is subject and what is predicate? Work doing person is called subject and whatever done by subject is called predicate. Understand? Work doing person is called subject and whatever is done by subject is called predicate. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डेफिनेशन क्या हो गई? जो व्यक्ति काम करता है वो उसका सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ भी काम किया जाता है वो प्रेडिकेट होता है। तो स्टूडेंट देखिए इसका डेफिनेशन, वर्क डूइंग पर्सन इज कॉल्ड subject, whatever done by subject is called predicate. सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ भी काम किया जाता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। जो काम करता है व्यक्ति, पर्सन, वो उसका सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। A red dressed lady was standing there. This is a sentence. But when we talk about what is subject and what is predicate, then a dressed lady, red dressed lady is subject and the remaining part was standing there is predicate. बात करते हैं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की, तो a red dressed lady सब्जेक्ट है और was standing there ये आपका प्रेडिकेट। तो आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। सो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स सब्जेक्ट में क्या क्या होता है? आपका डिटर्मिनर्स होते हैं, डिटर्मिनर्स के बाद आपका एडजेक्टिव होता है और आपका हेडवर्ड। डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड आपका जीरंड भी हो सकता है, जीरंड भी एज ए सब्जेक्ट वर्क करता है, और इनफिनिटिव भी हो सकता है। यानी इतनी चीज़ें आपके सब्जेक्ट के फॉर्म पर हो सकती हैं। डिटर्मिनर्स में हम लोगों ने देखा, डिटर्मिनर्स क्या है? जो डिटरमाइन करते हैं सब्जेक्ट को, नाउन को डिटरमाइन करते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा
आर्टिकल्स आते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस आते हैं, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आते हैं, वो डिटरमिनर्स होते हैं, एडजेक्टिव, द वर्ड विच डिस्क्राइब or say something about noun or pronoun that is called adjective. हेडवर्ड जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो हेडवर्ड हो गया। और जिरंड क्या है? जिरंड भी एक सब्जेक्ट की तरह ही वर्क कर देता है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं और वो सब्जेक्ट का वर्क करने लगे। इन्फिनेटिव क्या होता है? वर्ब के पहले टू का यूज़ करते हैं और वो सब्जेक्ट का वर्क भी करता है। टू वेयर इज ह्यूमन बीइंग। इस तरह से ये सब्जेक्ट के आपके पार्ट्स में बाकी डिटरमिनर्स आपको पहले से पढ़ा दिए गए हैं। अगर नहीं पढ़ाया गया होगा, पहले पढ़ा दिए गए, दैट इज डेफिनेटली आपको पढ़ा दिए गए हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लोग प्रेडिकेट की। देयर आर 3 पार्ट इन प्रेडिकेट। द फर्स्ट पार्ट इज वर्ब, second one is object and third one is complement. Verb, object and complement. Verb में doing person is doing any action या action showing word is called verb। में आपकी main verb भी हो सकती है, helping verb भी हो सकती है। ये आपका सेंटेंस में जो verb आएगी वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों आ सकती हैं, दोनों में से एक आ सकती हैं। एक पार्ट आपका वर्ब का होता है, दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट अगर आपको पता करना है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर सेंटेंस, देन यू हैव टू क्वेश्चन व्हाट और हूम। अगर किसी भी सेंटेंस में व्हाट और हूम का क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट अपने आप फाइंड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं ऑब्जेक्ट के। फर्स्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसमें लिविंग बीइंग यूज किया जाता है, जिसमें हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं मी, यू, हिज, हिम, इस तरह से। या किसी का नेम, वो लिविंग बीइंग पहले रहेगा। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसमें नॉन लिविंग को डिस्क्राइब करते हैं। अगर इनका सीक्वेंस चेंज करते हैं तो कोई ना कोई बीच में प्रीपोजिशन जरूरी है। बाद में आते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वर्ड डेराइव फ्रॉम द वर्ड कंप्लीट। जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड है वो कंप्लीट से बना हुआ है। इसका वर्क सिर्फ इतना होता है कि जो बचा हुआ यानी रिमेनिंग सेंटेंस है उसके सेंस को कंप्लीट करने का वर्क करता है। यानी कॉम्प्लीमेंट्स आर दोज वर्ड हु कंप्लीट द सेंस ऑफ रिमेनिंग सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, सी माई बेस्ट फ्रेंड गेव हिम my best friend gave him a book in school या in the park। ये आपका सेंटेंस लिखा हुआ। आपका सब्जेक्ट की बात करते हैं माय बेस्ट फ्रेंड, प्रेडिकेट की बात करते हैं तो गेव हिम अ बुक इन द पार्क, ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट है। माय क्या है? आपका डिटर्मिनर है। बेस्ट क्या है? आपका एडजेक्टिव है। फ्रेंड क्या है? हेडवर्ड है। यानी ये सब्जेक्ट का पार्ट, सब्जेक्ट के पार्ट के साथ 3 चीज़ें मिल गई, यानी डिटर्मिनर, एडजेक्टिव एंड हेडवर्ड। अब बात करते हैं प्रेडिकेट की। ये आपकी वर्ब है, मेन वर्ब। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। और जो बचा हुआ पार्ट है ये कॉम्प्लीमेंट है। इन द पार्क आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट। हिम और अब बुक में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले हिम आया, बाद में ए बुक आया, कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिविंग बीइंग आती है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग आती है। अगर इनका सीक्वेंस चेंज करते हैं, पहले डायरेक्ट और बाद में इनडायरेक्ट करते हैं, तो कोई ना कोई प्रीपोजिशन आना जरूरी है। यानी अगर
चेंज कर देंगे तो हो जाएगा माई बेस्ट फ्रेंड गेव अ बुक टू हिम इन द पार्क, यानी टू आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास सिर्फ इतनी। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ यू।